So let me just repeat it once again. What was that? We are going to prove additivity of integral. This is the statement: f is integrable on this interval, then f is integrable on any subinterval which is contained in this interval. Also, if there exists a point c which is in this interval, then e to b f of x dx, that will be equal to e to c plus c to b. Correct? So let us start the proof. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अपने को क्या प्रूव करना है? कोई भी सब इंटरवल में होना चाहिए ए टू बी. सो व्हाट वी विल प्रूव, वी शो दैट एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए सी फॉर any c which is between a to b, then general case is proved in similar way. ओके सो अपने को क्या प्रूव करना था? ए टू बी इंटरवल में कोई भी इंटरवल रहा सी टू डी, तो अपने को प्रूव करना था. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू दैट इंटीग्रेशन ए टू सी पे हम लोग प्रूफ करेंगे, एंड जनरल केस भी वैसे ही प्रूफ हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रूव द फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन दिस ए टू सी. दैट इज क्वाइट सिंपल. जस्ट ट्राई टू सी. पहले स्टार्ट करते सिंस एफ इज इंटीग्रेबल. लेट अस राइट द डेफिनेशन फर्स्ट. ओके, since f is integrable कहाँ पे? On this interval a to b. So what is the definition? Can somebody tell me? So let epsilon positive and p be the partition. P be the partition. That is, there exists p, I should say. There exists p with a partition. Correct? Such that partition of AB, such that u, correct, UPF minus LPF, PF बोला है, F बोला, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? Is this okay to you? Okay, now what? We are defining a new partition, that is Q. Q में मैं क्या कर रहा हूँ? जो मेरा P partition है, I am including one guy C. I am including this point C. Will it be okay? So ये Q को मैं refinement बोल सकता हूँ क्या? Q is refinement of P. Can I say that? Refinement means what? I am adding some extra node. So we have some relation. अगर refinement है तो अपने पास कुछ relation है. याद है तुम लोग को? मैंने बताया था, वो लाइन याद करो. दैट इज़ माई एक्चुअल एरिया. यहाँ पे अगर यू, सॉरी, यहाँ पे एल आएगा ना, एल पी एफ है. यहाँ पे अगर एल पी एफ है एंड यहाँ पे अगर यू पी एफ है, सो रिफाइनमेंट लिया तो क्या करूँगा मैं? आई विल गो मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया. सो डू यू सी द रिलेशन? दिस इज एल क्यू एफ एंड दिस इज एल यू क्यू एफ. Do you see the relation? UQF is going to be less than equal to UPF, and here LQF is going to be greater than equal to LPF. Is it clear? ये सब पहले ही किया है, जैसे आई एम रिपीटिंग इट. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये Q हो गया. अभी Q को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. लेट मी डिफाइन P1. P1 इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ? Q इंटरसेक्शन A to C. सो ये P1 क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? एंड P2 मैं डिफाइन कर रहा हूँ Q intersection C to B. So what is my Q? Q is a partition which contains C. So मैं क्या कर रहा हूँ? अभी A to C में जितने भी नोट्स आएंगे उनको कलेक्ट किया. That is my new partition P1. And ये P1 किसका partition रहेगा? P1 is partition of AC. Let me write it here. P1 is partition of AC and P2 is partition of CB. Can I say that? Yeah. Also you can claim that
Q is same as P1 union P2. Correct? Yes. Okay, now just let me ask you something. अगर मेरे को निकालना है UFQ, correct? What will be that? UFQ. Can I write it as this is equal to UFP1 plus UFP2? FQ एक्चुअली लिख दिया मैंने, PQ मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग, शुड बी QF. सो समझेगा ना तुम लोग को, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये नोटेशन क्या लिखा, ये पहले और ये पहले. विल इट बी ओके फॉर यू? या. So what will be this? This is UFP1 and this is UFP2. Can you see that? Will this be true? Can you see that? UFQN क्या रहेगा? What is Q? UFQ क्या रहेगा मेरा? पूरा इंटरवल A to B में है. Will this be equal to UFP1 plus UFP2? Do you observe that? P1 क्या है और P2 क्या है? Just observe करो. P1 क्या है? A to C तक है. फिर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया C to B तक, तो मेरे को मतलब पूरा ही मिल गया एक्चुअली. Same, can I say that LFQ that is also equal to LFP1 plus LFP2? Will it be okay? Yes, that's it. We are done now. Can somebody tell me अपने को प्रूफ क्या करना था? What was our claim? Yes, very good. Subtract कर दो हो जाएगा. प्रूफ क्या करना था? F is integrable on this. ठीक है. So let us subtract first. Subtract किया तो क्या आएगा? UFQ minus LFQ. क्या आएगा ये? That is going to be, yes, UFP1 minus LFP1 plus UFP2 minus LFP2. Do you see that? See, ये सब प्रूफ डायरेक्ट फ्लो होता है, अपने को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है इसमें. समथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ कैन यू सी दैट जो मेरा ये टर्म है, दिस इज एडिशन ऑफ दीज टू टर्म. अगर मैं सिर्फ इसको और इसको कंपेयर किया तो व्हाट कैन यू से? UFP1 minus LFP1 that is less than equal to this. This is something like 4 equal to 2 plus 2. So मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 is less than 4 लिख सकता हूँ. That is what I am going to do in the next task. मतलब ये टर्म क्या करूँगा मैं? Less than this. That is what UFP1 minus LFP1 that is less than equal to what? UFQ minus LFQ. Will this be okay? लेस देन इक्वल बोला बिकॉज ये टर्म ज़ीरो भी हो सकता है, वो अपने को पॉसिबिलिटी है, सो दैट्स वाई इट इज़ लेस देन. इज इट ओके नाउ? या. ओके, व्हाट नेक्स्ट? अभी तुमको इसके बारे में पता है. दैट इज अगेन लेस देन होम, लेस देन इक्वल टू यू एफ पी बिकॉज वो रिलेशन पी के लिए था, ये क्यू क्या था? रिफाइनमेंट है उसका. एंड नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, कोई बताएगा मेरे को? बिकॉज दैट इज रिफाइनमेंट. क्यू और पी क्या है? क्यू इज रिफाइनमेंट ऑफ पी. यस. सी यहाँ पे शायद मैंने मुझे वो भी एक्चुअली इंक्लूड करना चाहिए था इधर ही कहीं पे. इसके जस्ट बाद ही लिखना चाहिए था. व्हाट इज़ दैट? क्यू इज़ रिफाइनमेंट ऑफ पी. सो व्हाट इज़ द रिलेशन? डू यू सी दैट रिलेशन? फिर इधर से मैं सब्ट्रैक्शन लिया तो क्या आएगा? वही आएगा जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने एरो दिया है. यस, एंड दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन. दिस मीन्स व्हाट? दिस टर्म इज़ लेस देन एप्सिलॉन. मतलब क्या? एफ इज़ इंटीग्रेबल ओवर P1 क्या था ये? A to C था ना. फर्स्ट पार्ट हुआ प्रूफ, देखा सबको? लेट मी जस्ट रिपीट इट वंस अगेन. वी स्टार्टेड विथ, पहले तो हम लोग ने, मेरे को क्या शो करना है, कोई भी सब इंटरवल में मैं क्या शो करूँगा? A to C के लिए, बाकी सब फॉलो करेगा. क्यों करेगा अभी बात करते हैं, ठीक है?
So we are given since f is integrable. So f is integrable, let us write the definition. For epsilon positive, there exists P be a partition of AB such that UPF minus LPF is less than epsilon. ठीक है, बट द पॉइंट अभी C के बारे में बात करना है, तो पहले C ज़रूरी नहीं है अपने नोड में हो, तो what we are going to do, we are going to include it in our partition. So we are defining Q equal to P union C. नाउ सी इज़ इन माई पार्टीशन. अभी मैं क्या करूँगा, सो क्यू इज़ रिफाइनमेंट, तो ये अपने को रिलेशन आएगा एल पी एफ दैट इज़ लेस देन इक्वल टू एल क्यू एफ एंड यू क्यू एफ दैट इज़ लेस देन इक्वल टू ऐसा. दिस इज़ द रिलेशन आएगा. सब्ट्रैक्शन लिया इसका, वो लास्ट में मैं एरो लिखा था ना, उसका यूज़ होता है इधर. नेक्स्ट स्टेप, आई डिफाइन टू न्यू पार्टीशन P1 and P2. P1 is Q intersection AC, Q P2 equal to Q intersection CB. So what is this P1? P1 is partition of interval A to C, and what is this P2? P2 is partition of interval C to B. Now what did I do? I write Q equal to P1 union P2. So UFQ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा क्या UF P1 से UF. You can write it. UFQ का अगर इक्वल टू लिखा, दैट इज समेशन कैपिटल MI इंटू ये सब आएगा ना. सो यू कैन से दैट ये डायरेक्टली सेम होता है. Same here also, LFQ that will be same as LFP1 plus LFP2. Now what, just subtract किया, so I am considering this guy just like 4 equal to 2 plus 2, so I can write 2 is less than 4, so this term is going to be less than this. Similarly I could have done this also na. Yes, अगर ये लिया होता तो मेरे को क्या मिलता, फंक्शन इज इंटीग्रेबल इन C2B. या करेक्ट. So that is ये. So UFP1 minus LFP1 that is less than equal to ये, and since ये क्या था, Q refinement था, so this is going to be less than equal to UF. You can see that UFQ ये less than रहेगा UFP से. Just हम लोग ने बात किया था, जैसे हम लोग ने refinement लिया, your UFP is going to be closer to area, actual area. So this is true, but this is less than epsilon, that means what, your this term is less than epsilon, that means what, f is integrable on A to C. फर्स्ट पार्ट हो गया. नाउ कैन समबडी टेल मी, अगर कोई भी इंटरवल दिया C to D, कैन यू प्रूव दैट इफ आई गिव एनी इंटरवल, केस क्या रहेगा, एक्स्ट्रा क्या रहेगा, अगर मेरे को कोई भी इंटरवल दिया C to D, सो करना क्या रहेगा तुमको, फर्स्ट सेम इधर का लाइन सेम, यहाँ पे क्यू क्या लेना पड़ेगा, P यूनियन C एंड D. मतलब इन दिस A to B इंटरवल आई वॉन्ट टू फिक्स दिस C एंड D. करेक्ट. नाउ अपने पास तीन लोग बचेंगे, देखो P1, P2, P3. P1 क्या रहेगा, A to C, P2 क्या रहेगा, C to D, एंड P3 क्या रहेगा, D to B. डू यू सी दैट, सेम थिंग फॉलो होएगा बाकी, बस उधर क्या रहेगा, इधर तीन लोग रहेंगे बस. सेम ऐसे लिखोगे P1 P2 P3. P1 क्या है, A to C, फिर एक P2 आएगा C to D, फिर D to B, ऐसा सेम थिंग, सेम एडिशन में आएगा, एंड यू विल टेक दैट. इज इट ओके? यस, कैन यू डू दैट? जस्ट ट्राई इट एट योर होम. सेम पूरा सेम ऐसे आएगा, जस्ट यहाँ पे तीन पार्टीशन आएंगे, दिख रहा है तुम लोग को, पूरे इंटरवल को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, A to C में, C to D में, एंड D to B में. ये केस में मेरे को ये इसको कंसीडर करना रहेगा, मतलब इधर क्या रहेगा, ये तीन लोग का एडिशन रहेगा, उसमें से मेरे को बीच वाले को कंसीडर करना रहेगा, सेम थिंग, दैट्स इट. और इन द एग्जाम यू कैन डायरेक्टली से सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट. यस, सो आई थिंक वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ व्हाट, इंटीग्रेबल प्रूफ कर लिया. अभी क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, that is this integration E to B f of x dx, that should be same as E2 to C plus C to B. That is quite simple. Yeah. mm. Yeah, should I start now? इतना समझा ना सबको? Okay, good. Now observe this, UFP बड़ा है किससे, UFQ से.
करेक्ट, बिकॉज क्यू क्या है, मेरा रिफाइनमेंट है ना, दैट इज मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया. बट वॉट इज योर यू एफ क्यू? दिस इज सेम एज यू एफ क्यू वन प्लस यू एफ क्यू टू. करेक्ट. बट वट इज दिस यू एफ क्यू वन एंड यू एफ क्यू टू? यहाँ पे मैं यू एफ पी ऐसे रखता हूँ. दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पार्ट क्या है, यू एफ क्यू वन क्या है, अपर इंटीग्रल. डू यू सी दैट? एंड दिस इज ऑल्सो अपर इंटीग्रल. बट कौन से इंटरवल में, कोई बताएगा? अपर इंटीग्रल मतलब ऊपर एक बार दूंगा मैं, यू है ये. सो दिस इज ए टू सी एंड दिस इज सी टू बी. डू यू सी दैट? इज इट क्लियर? ये जो भी लिखा मैंने, इज इट क्लियर टू यू? But now I have already told you f is integrable on this interval. इंटीग्रेबल है मतलब क्या, जो इसका अपर इंटीग्रल रहेगा दैट इज सेम एज फाइनल इंटीग्रेशन. एल एफ इक्वल टू यू एफ, याद है कि नहीं? करेक्ट. मतलब ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है दैट विल बी ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. करेक्ट. एंड व्हाट इज दिस यू एफ पी? सेम थिंग, इधर भी अपर इंटीग्रल आएगा लेकिन फंक्शन इंटीग्रेबल है, सो आई विल डायरेक्टली राइट इट एज ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. डू यू सी दैट? इज इट क्लियर? करेक्ट. सी मैंने कैलकुलस तुम लोग को बताया भी है, कैलकुलस में अगर कुछ भी इक्वल प्रूफ करना है सो अपने को इनइक्वालिटी से ही करना पड़ेगा. सो इक्वेशन वन बोल दो इसको. सी लेट मी टेल यू समथिंग. अगर ए एंड बी को इक्वल प्रूफ करना है तो क्या बोल दो? ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ए. सो ये दोनों क्लेम क्या बोलेंगे? ए इक्वल टू बी. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू. डू यू सी दैट? ये पार्ट, दिस इज जस्ट कमेंट. सो इतना क्लियर है तुमको? दिस इज नेक्स्ट. हाँ, एल एफ के लिए करेंगे, क्या आएगा? परफेक्ट. या कैन यू टेल मी स्टार्ट कैसे करूँ मैं? एल एफ के लिए क्या रिलेशन है मेरे को? एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ क्यू ना. यस. एंड बट एल एफ क्यू क्या है? करेक्ट, वेरी गुड. एल एफ क्यू वन प्लस एल एफ क्यू टू. दैट्स इट. आगे नेक्स्ट स्टेप तुमको दिख ही रहा है. ये टर्म क्या है? दिस इज लोअर इंटीग्रेबल रहेगा, बट फंक्शन इंटीग्रेबल है तो सेम रहेगा. एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट इज एल एफ क्यू वन, दैट इज ए टू बी, सॉरी ए टू सी ना. दिस इज ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस दिस इज सी टू बी एफ ऑफ. डू यू सी प्रूफ कितना सिंपल दिख रहा है अभी? दिस इज लोअर इंटीग्रल मतलब यहाँ पे चाहिए तो बार लगा दो, यहाँ पे भी एक्चुअली लगाना चाहिए था. फिर नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं बोलूँगा फंक्शन इंटीग्रेबल है तो वी कैन रिप्लेस डायरेक्टली. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज लेस देन इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ. डू यू सी दैट? करेक्ट. सो दिस इज योर इक्वेशन टू. बोलो इसको. फ्रॉम वन एंड टू व्हाट कैन यू से? वन में क्या बोलता है? ये ग्रेटर है, ये सेम ये प्रॉपर्टी. डू यू सी दैट? ए इज लेस देन इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन इक्वल टू ए, तो क्या बोलेंगे? ए और बी इक्वल होना चाहिए. सो फ्रॉम वन एंड टू दिस इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. डू यू सी दैट? मीन्स प्रूव्ड. प्रूफ देखा कितना सिंपल था? सी हम लोग ने कितनी बार रिफाइनमेंट का यूज़ किया एंड वो इनइक्वालिटी का यूज़ किया, जो भी हम लोग ने प्रूफ किया था पहले, याद है? यस. सी और हर एक केस में याद रखना हम लोग ने हर एक स्टेप में बहुत सारा मेथड यूज़ किया. सी यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? सिंस एफ इज़ इंटीग्रेबल इन ए टू सी,
सो ये क्या रहेगा, जो अपर इंटीग्रल है दैट इज गोइंग टू बी दिस, लोअर इंटीग्रल दैट इज गोइंग टू बी दिस, एंड हियर ऑल्सो एक्चुअली मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था, लेट मी राइट इट नाउ. व्हाट शुड आई राइट? दैट इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे बार, ये भी अपर है. बट इसके बाद क्या लिखने का तुमको, सिंस एफ इज इंटीग्रेबल सब पे, ए टू बी पे भी है, ए टू सी पे भी है, सो मतलब अपर इंटीग्रेबल और लोअर इंटीग्रेबल क्या रहेगा, दैट विल बी सेम एज दिस फाइनल इंटीग्रेशन. सेम थिंग वी आर गोइंग फॉर एल एफ पी एंड एल एफ क्यू वन. इज इट ओके? इज द प्रूफ क्लियर टू यू? एवरीवन? Should I repeat it once again? Can you do the proof by yourself? Just let me repeat. तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो अभी मेरे को रिपीट ही करना पड़ेगा. सो फर्स्ट थिंग इज दैट द क्वेश्चन बोलता है तुम्हारा कि यू नीड टू प्रूव एनी सब इंटरवल. तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ इन दिस इंटरवल ए टू सी के लिए. सो मैंने क्या किया, yeah, so since f is integrable on this interval, so for given epsilon positive there exists partition p such that this, and partition p exist करता है मतलब क्या, u p f माइनस एफ पी ही लेना चाहिए था, बिकॉज उधर मैंने क्वेश्चन में हर जगह एफ पी ही लिया है. तो लेट मी टेक इट. मोस्टली एक जनरल फॉर्मेट रखा तो ठीक है, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, एटलीस्ट मैं चेक करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. यू शुड नो दैट ये ही है. So what is that, UFP minus LFP, that is less than epsilon. Now what next? I am giving a new partition Q, that is P union C. मतलब क्या, this Q is going to be a refinement of P. So relation क्या रहेगा, UPF minus sorry LPF that is going to be less than equal to LQF, and here UQF that is going to be less than equal to UPF. Is it okay? So next we are going to define new P1 and P2. What is my P1? That is Q intersection A to C. And what is your P2? Q intersection C to B, where P1 is the partition of A to C and P2 is the partition of C to B. Okay. So what is your Q? Q is P1 union P2. So can I say that? See, ये अपने को डाइजेस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई हो सकता है क्या. Try to observe this. This is UFQ, correct? That is same as UFP1 plus UFP2. Same. LFQ that is same as LFP1 plus LFP2. अगर ये हुआ तो बाकी तो सेम है, जस्ट सब्ट्रैक्ट करो एंड यू विल गेट दैट. कहाँ Q1 Q2 लिया मैंने, यहाँ पे. अच्छा ये Q1 Q2 बोल रहे हैं. हाँ एक्चुअली ये P1 ही P2 है, सॉरी. हाँ हाँ. और नहीं नहीं, वो Q नहीं है, वो P1 ही है एक्चुअली. समझ रहा है, मैंने यू एफ पी को, ये देखना इधर. थैंक यू तूने मतलब बताया. ये देख, यू एफ पी यू एफ क्यू क्या है, दैट इज सेम एज P1 प्लस P2 ना, यही मैंने सब्सटीट्यूट किया है वहाँ पे. सो दैट इज़ P1 एंड P2. लेट मी जस्ट करेक्ट इट, थैंक यू सो मच. सो दिस इज़ P1, दिस इज़ P2, करेक्ट. एंड सेम हियर ऑल्सो, यहाँ पे दैट इज़ यू एफ P1. ये तुम लोग को बोलना चाहिए था बीच में मेरे को. दिस इज़ P2, करेक्ट. सी मतलब मैंने ये यूज़ किया, यही दोनों इनइक्वालिटी यूज़ किया, यही दोनों इक्वालिटी यूज़ किया एक्चुअली. यस. नाउ इज इट क्लियर? जस्ट सब्ट्रैक्ट किया, इधर से मेरे को दिखा कि योर एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए टू सी. नाउ कैन समबडी टेल मी जनरल केस में क्या करूँ मैं. सपोज मेरे को करना है इन जनरल केस सी टू डी में ये ट्रू होना चाहिए. कैन समबडी टेल मी द प्रूफ.
Yes, can someone? Or should I ask with someone? समझा, एक्चुअली दिस इज़ हाउ मैथमेटिक्स इज़. अपने को करना है, मतलब एज अ टीचर वी शुड डू वन पार्ट एंड वी शुड आस्क द अदर पार्ट कि हाँ कर सकते हो क्या, कैन यू डू दैट. या लेट मी आस्क विथ समवन. पायल, कैन यू हियर मी? या कैन यू टेल मी जनरल केस में क्या करूँ मैं? बाहर हो क्या तुम? बहुत आवाज़ आ रहा है. ओके देन. शिवांगी. हेलो शिवांगी. या कैन यू टेल मी द प्रूफ ऑफ द जनरल केस अगर इंटरवल सी टू डी लिया तो? Okay, no problem. Oh, so is there anyone who is sure about that? Let me ask this. Because I'm there to help you, just you need to go. You need to start the proof. Yes, Atharv. Atharv. Yeah, can you try? चलेगा, नो प्रॉब्लम. अगर स्टार्ट करना है तो यू कैन. और एनी वन श्रेयस ट्राई करेगा? हाँ, सी टू डी इन जनरल के लिए. सो फर्स्ट स्टेप इज ओके, दैट यहाँ तक तो सेम रहेगा. करेक्ट. रिफाइनमेंट के लिए क्यू क्या रहेगा मेरा? करेक्ट. पी यूनियन सी कॉमा डी यू कैन से, बिकॉज दोनों पॉइंट ही है ना सिर्फ. सो दो बार यूनियन डालने से अच्छा जस्ट यू कैन से पी यूनियन सी कॉमा डी. दीज आर द टू पॉइंट. नाउ व्हाट? मेरा क्यू ये रिफाइनमेंट रहेगा, दिस इज ओके. करेक्ट. अभी पार्टीशन, तीन पार्टीशन आएगा. वेरी गुड. पहला पार्टीशन क्या रहेगा? पी वन इज क्यू इंटरसेक्शन ए टू सी. करेक्ट. पी टू क्यू इंटरसेक्शन सी टू डी. एंड पी थ्री क्या रहेगा? क्यू इंटरसेक्शन डी टू बी. करेक्ट. डी टू बी एक्चुअली. यस. व्हाट नेक्स्ट अभी बोलो. सेम फिर यही लाइन लिखेंगे, पी वन इज पार्टीशन, पी टू इज पार्टीशन, और फिर क्यू क्या लिखेंगे, ये यूनियन है. फिर यू एफ क्यू और एल एफ पी क्या रहेगा? तीनों का एडिशन. इधर भी तीनों का एडिशन. डू यू सी दैट? सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा आएगा, तीन ब्रैकेट्स आएंगे अपने पास. यस. नाउ व्हाट? अपने को क्या करना पड़ेगा? जो मिड वाला ब्रैकेट रहेगा, अपने को कौन चाहिए? सी टू डी पे प्रूफ करना है ना, तो अपने को पी टू वाला कंसिडर करना पड़ेगा. So we'll take the mid wala bracket and we will say that bracket is less than equal to this. But ये refinement था, so that is going to be less than equal to this, and that is less than epsilon. So we have proved f is integrable in the interval c to d. Correct? Is it okay now, everyone? Okay. So I want this to be written with by you. You can write and send it to me. This part in the interval c to d. नेक्स्ट पार्ट ये अपने को क्या प्रूफ करना है अपने को? अगर ए टू सी पे है तो सी टू बी पे भी रहेगा. फिर दैट इंटीग्रेशन सेपरेट होता है. सो उसके लिए बेसिक यूज़ किया, जो भी वही हो गया. यू एफ पी दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ क्यू, एंड दैट इज सेम एज यू एफ पी वन प्लस यू एफ पी टू. बट ये क्या है? अपर सम, and this is also upper sum, but function is integrable. That means what? Upper sum is going to be actual integral.
that is a to b f of x dx, that is going to be a to c f of dx plus c to b. Is it okay? Is this clear? ये तीन लाइन क्लियर है क्या? Yes. Is it clear to you? करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में क्या किया? दूसरा यूज़ किया एल एफ पी, दैट इज लेस देन इक्वल टू एल एफ क्यू. वाई दिस इज ट्रू? वाई दिस इज ट्रू? रिफाइनमेंट. करेक्ट, वेरी गुड. करेक्ट, एक्चुअल एरिया के नियर जाएगा वो. यस, गुड. एंड व्हाट इज एल एफ क्यू? दैट इज एडिशन ऑफ दिस टू. और ये क्या रहेगा मेरा? लोअर इंटीग्रल, एंड दिस इज ऑल्सो लोअर. हाँ, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो लोअर इंटीग्रल. करेक्ट. व्हाट नेक्स्ट? फंक्शन इंटीग्रेबल. इधर लिखना भी है तुम लोग को, एक्चुअली मैं लिखा नहीं हूँ. सिंस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, सो लोअर इंटीग्रल विल बी सेम एज होल इंटीग्रल. हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. इज इट क्लियर नीरज? समझा क्या? नाउ कैन यू डू दैट? अथर. सी टू डी को क्या बोलेंगे? सी टू डी में कितने इंटीग्रेशन में ब्रेक होएगा, कोई बताएगा मेरे को? ये पूरा पहला क्या रहेगा? ए टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू बी. करेक्ट. करेक्ट. सेम उधर भी यही करेंगे. कैन यू डू दैट? यू पी एफ, ये इधर क्या आएगा? तीन लोग आएंगे एक्चुअली. ये पी एन सेम वही थिंग. देख रहे हैं, बार बार वही रिपीट हो रहा है. दिस विल बी ए टू सी, दिस विल बी ये सी टू डी इन बिटवीन, एंड दिस विल बी सी टू बी. सेम थिंग. फिर नेक्स्ट पेज में भी ऐसा. करेक्ट. सो कैन यू डू दैट? कैन यू कंप्लीट इट? ओके देन. सो या, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड all the thing. Mostly I think एक दो बचा रहेगा, so we will do that. And from next lecture we will start with problems, solving problem. So I think we have completed the theory part of this. Theory part में क्या था? कुछ है नहीं मोस्टली. इनइक्वालिटीज़ है, रिफाइनमेंट में इनइक्वालिटीज़ है, देन रीमान इंटीग्रेशन है, क्राइटेरियन ऑफ. so you just prepare this all thing. Correct. And if you have any doubt you can ask me anytime. Okay.